लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एल्जेब्रा, ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक ओरिएंटेड नहीं है ये। जो ओके। एक्स स्क्वायर वाले नहीं होते हैं, वैसे वाले में यूज होता है. लेट मी जस्ट गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ how you solve the. So if you are, for example, generally if you're given a function which is an algebraic function जिसमें x square वगैरह लिखा हुआ है, और you have a format of px by qx, okay? ऊपर भी algebraic function है, नीचे भी. तो the keywords are that you have a function of the type px by qx, right? So we have to integrate such a format, but before we integrate, we have to simplify this. ओके। क्योंकि ये डायरेक्टली इसको अगर इंटीग्रेट करोगे, देर इज नो मेथड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग इट इन अ शेप एंड फॉर्म जिससे कि वो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाए. दैट इज अवर गोल, अच्छा। राइट? एंड दिस मेथड इज द मेथड ऑफ partial fractions, okay? And these are the, so it is integration of फंक्शंस कह लो, या एल्जेब्राइक फंक्शन कह लो, या रैशनल फंक्शन कह लो. रैशनल मतलब p by q, okay? And so you're integrating the we call them partial fractions. Okay. So let's say you, or like I said, you can also call them as the integration of rational function. एक ही बात है. अच्छा। Okay, so दो नाम से जाना जाएगा, rational function. So these are the two names you can assign it, px. So initially you will be given a like px divided by q, where जैसे fx और gx होते हैं, ये वही है. Some अच्छा। x square plus 2x plus 3 algebraic function is getting divided with each other. Now if you straight away try to integrate, you will not be able to integrate. So what we do is, there is a method where we will break this down into multiple fractions, which means, for example, you know, if you have a number which is like, what should I say, 19 by 17, so you break it down into 1 plus 2 by 17, okay? So this is called breaking down. ओके। है तो वही, लेकिन ब्रेक डाउन कर दिया उसका, राइट? सो वी विल ब्रेक दिस डाउन, विच मीन्स वी विल सिंप्लीफाई, और वी विल break this down so that we get standards and formats which are easily integrable. मतलब बड़े आराम से इनका तो पॉलिनोमियल दे रखे होंगे, और पॉलिनोमियल को हमें क्या करना है, तोड़ना है, और फिर इंडिविजुअली जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं उनको हम आराम से कर सकते हैं. तो लेट मी शो यू वन एग्जांपल ऑफ व्हाट आई मीन बाय दिस. ओके, सो लेट्स से यू आर गिवन अ फंक्शन and you have to break it down. A rational function is given to you of the form px by qx, and you want to break it down. So what you do is this: you say that let this function which is given to you be written in a certain manner. तो वो आप उसको ऐसे लिख लेते हो कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, and you break it down as a1 linear function, then a2 डिवाइडेड, लीनियर मतलब नीचे x की पावर 1 है, ओके? ठीक है। मतलब फैक्टर्स बन रहे हैं उसके डिनोमिनेटर के. ओके, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड यू राइट देम आउट. जितने भी दे रखे हैं, मान लो, यू कैन ब्रेक इट डाउन इन, सो ईच वन ऑफ देम इज डिफरेंट. ओके, सो ए नीचे जितने भी ax प्लस b फॉर्मेट है, ये वाले, सो दीज आर a1 x plus b1, a2x plus b2 plus a3x plus b3. कहने का मतलब है, जो लेफ्ट साइड पे दे रखा होगा ना ये px by qx, इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये तो नंबर्स हैं, ओके, कोफिशिएंट, और ये log x टाइप का है कुछ, ओके। 1 by x टाइप का हो गया ना. Question is, how do we break this down? This is no brainer. This is fairly straightforward. If you do 1, you can easily do
for any. So you similarly you can get many similar formats, and for every type of algebraic p by q. So there are many types of p by q. मतलब ऊपर लीनियर फंक्शन हो गया, नीचे क्वाड्रेटिक हो गया. जैसे ये वाला ऊपर x है सिर्फ, ये क्वाड्रेटिक है. हाँ. उसके लिए जो पार्शियल फ्रैक्शंस लिखते हैं, ये दीज आर द पार्शियल फ्रैक्शंस. ओके, तो हमने इसको तोड़ दिया ना, पी एक्स बाई क्यू एक्स फॉर्म को एक ऐसी फॉर्म में लाना है जिससे वो बहुत आराम से सॉल्व हो जाए. ठीक है. So let's say you have another format where you, depending on what they give you, you decide ki which particular format will I choose. So let's say you are given one more. Let me give you an example. जैसे आपको एक फॉर्मेट दे दिया उन्होंने, quadratic format है, okay, and you have to break this quadratic format into partial fraction. Okay, so and you can't integrate it directly. So what do? You are given a quadratic format of, for example, lx square plus mx plus n. You have to break this down into a partial fraction which will look like this: ax plus b, okay, divided by, once you see a question, it will be easy for you to understand how you will break this down. a1x plus b divided by lx square plus mx plus c. So depending on what type of px by qx is available to you, you will be breaking this down. Okay. अब मैं सारी फॉर्म्स लिख रहा हूँ, बट होपफुली दिस इज द कीवर्ड यू हैव टू कैप्चर इज दैट यू आर गोइंग टू डीकम्पोज. डीकम्पोज करने का मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके तोड़ना, ऐसी फॉर्मेट में ले आना जिससे कि वो आपको पता चल जाए कि क्या होता है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, इफ यू वर टू, फॉर एग्जांपल, आई गिव यू अ फॉर्मेट व्हिच इज ओके, लेट्स से, एंड वन एग्जांपल विल मेक इट क्लियर इन योर माइंड. ओके, थोड़ा सा अभी क्लाउडी होता है शुरू में. सो लेट्स से यू हैव टू इंटीग्रेट 4x plus 5, लीनियर फंक्शन है ऊपर, पावर इज 1, नीचे में आई एम गोइंग टू राइट इट एज क्वाड्रेटिक. ओके, सो लेट्स से इट इज अ quadratic or some x square plus x minus 2, right? Now if you notice the denominator, okay, so I can write it as 4x plus 5 and x plus 2 into x minus 1. just see, break कर सकता हूँ मैं इसको, 2x minus x लिख दूंगा ना, ठीक है. dx, right? So if you go back to what I told you, so qx, I have found the factors. ये वाले दिख रहे हैं? हाँ, yes sir. दिख रहे हैं ना factors? ये when I said कि px by qx में क्यों मैं नीचे लिख रहा हूँ ये, right? There is a reason. So I have split it in factors. So what I say is कि मुझे अब partial fraction निकालने हैं ऐसे, 4x by 5 x plus 2 into x minus 1 is equal to a upon x plus 2 plus b upon x minus 1. If I can find the values of a and b, तो I am able to break it into log format. इसका इंटीग्रल तो log of x plus 2 होगा ना, कोई भी नंबर आ जाए. Yes sir. So let's take an LCM. I will put it in more structured format. I'm just giving a high level view of the concept of decomposition, which is breaking it down. So this is x plus 2 and x minus 1, and this is 4x plus 5, x plus 2, x minus 1. The good part was ये इसके factor बन गए थे, तो ये मैंने बना लिया ax minus. Let me collect x a plus b plus 2b minus a upon x plus 2 into x minus 1 is equal to 4x plus 5 upon x plus 2 into x minus 1. ठीक है? Now let's do a comparison of both the sides. x के coefficient देख लो आप, a plus b is equal to 4 and 2b minus a is equal to 5. ठीक है? कंपेयर कर लिया मैंने, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये x के साथ वाला पार्ट है 4, राइट? So this is 3b is equal to 9 and b is equal to 3.
एंड ए इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी वैल्यू मुझे पता चल गई। अगर मैं इसको दोबारा लिखूं तो दिस इज 1/x+2 प्लस 3/x-1। हम्म, तो इसका तो इंटीग्रेशन, तो मैंने इसको तोड़ के इस पूरे फंक्शन को px/qx को इसमें कन्वर्ट कर लिया पूरा। सो आई एम एक्चुअली डूइंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 प्लस 1/3x-1। ये मेरे दो इंटीग्रल हैं जो मुझे निकालने हैं। दिस इज अच्छा, व्हाट log of x-1। ठीक है। डिकम्पोजिशन समझ में आया कोई? आई विल राइट डाउन अ मेथड्स, ओके, वो एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं। दिस इज नो ब्रेनर, आई विल शो यू इन एनसीईआरटी वेयर आर दे रिटन, यू कैन सी एंड देन वी विल आइडेंटिफाई। ये पैटर्न है यार, अगर ऐसा क्वेश्चन हो अलजेब्राइक तो उसको ऐसे तोड़ना है। अच्छा, स्टैंडर्ड मेथड है, मतलब मैंने कोई क्रिएट नहीं करा अभी। वी विल सी क्वाड्रेटिक ऑल्सो, ओके, कि क्वाड, ये अभी तो लीनियर वाले बनाए थे, ऐसे 2-3 फॉर्मेट्स हैं, देखते ही मालूम चल जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। नथिंग, मतलब कुछ भी इसके अंदर बड़ी बात नहीं है, ओके। ठीक है। लेट मी शो यू द, फॉर एग्जांपल लेट्स से न्यूमरेटर में एक यू हैव अ quadratic, okay, so let's say in a numerator, let me just write a quadratic equation. Let's say it is 2x square, and you will see how hard it is to, you can't just integrate this px by qx format just like that, ऐसे मतलब होने होता नहीं integrate. So if you say this is x square plus 2 x minus 1, right, dx, right? So do you see in the numerator you have a quadratic, यस सर। right, and in the denominator you can see, the you can't solve it just like that. It is, first decompose it. हम्म, If you see a quadratic in numerator, if you see a quadratic in numerator, the format to be used is ax plus b divided by the quadratic itself. अच्छा, Okay, so ax plus b, और सॉरी नीचे जो फैक्टर्स बने हैं वो लिखने हैं, सॉरी, ओके। सो दिस इज, आई थिंक वी हैव नॉट डन द मेथड। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2, जो क्वाड्रेटिक नीचे वाली है, पावर 2 वाली, वो प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। इनका एलसीएम तो यही आएगा जो सॉल्व करेंगे जब हाँ, इन दोनों का पार्शियल। बट ये देखो, द मोमेंट आई सॉ अ quadratic, what type of strategy I've adopted? I've split the factors in two parts. Okay, and let me go back to that जो मैं लिख रहा था ना, एल एक्स स्क्वायर, ये वाला, ये दिख रहा है, ये वाला हाँ, यस सर। एल एक्स स्क्वायर प्लस, राइट। सो आई मेंट कि if you see a quadratic in the numerator, something like this, okay, and you don't have to divide it with the this quadratic, but the factor which is given in the denominator, not with ओके, this. Okay, तो वो हमें पहचानना पड़ेगा कि नीचे क्या क्या दे रखा है। So that's अभी लिखेंगे, we will write all the methods, just telling you what is decomposition. So hopefully decomposition is clear, right? Now let's start writing the structured way, right? What are the methods available? तो ये decomposition हमने को तोड़ के इस तरह से बनाना है कि वो, अब ये वाला देखो, if you notice this, if you put x square plus 2, x square plus 2 is equal to y, if you do this, right? So ये क्या, ये डेरिवेटिव आ रहा है ना ऊपर, हाँ, आ रहा है। x का सिर्फ x है ऊपर, हम्म, है ना? So that is why this has been done to separate them out. ये तो log है, c की कोई करेक्ट। वैल्यू आ जाए वही सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, हम्म, ठीक है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स राइट द मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल टू अस, अच्छा, सो दैट, ठीक है। अब मेथड लिख लेते हैं जिससे कि आपके दिमाग में एकदम स्पष्टता आ जाए कि
भाई अगर ऐसा मेरे पास आता है तो कैसे लिखना है और इसको कैसे लिखना है, बस सिंपल सी बात है. Okay, so let's say let me just see if these are mentioned in NCERT as a separate topic of partial fractions. Okay, NCERT NCERT exemplar में हो सकता है, हो सकता है. partial fraction integration है, अच्छा. NCERT में ही है इंटीग्रेशन में. ओके, सो आई विल जस्ट कॉपी देम. इनफैक्ट आई विल जस्ट गिव यू द लिंक, आप उसको पेस्ट कर देना. सो व्हाट वी विल डू इज यूजिंग दैट वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस. तो आपको सिर्फ पहचानना है कि भाई सर ये वाली फॉर्मेट इसमें मैच हो जाएगी. ओके, अच्छा. ठीक. एंड द एंड खत्म. 3-4 मेथड होते हैं और कुछ है भी नहीं इसके अंदर, जस्ट कट एंड कॉपी पेस्ट है. पार्शियल फ्रैक्शंस में जा ढूंढ रहा हूँ मैं. ब्रॉडली जो द क्वेश्चंस वी आर डूइंग will largely take care of NCERT exemplar. ओके. Covered होगा. ऐसा नहीं होगा कि you will have something different in NCERT. More or less, most of the questions have been covered. Some are going to be obviously different. Let me just see here इसमें. Can we do a search on it? No. कंट्रोल एफ. हो जाता है इसमें search? Okay. हाँ, searchable तो है यार. Methods of integration में, so you have fundamental theorem of calculus, then you have integrate, ये मेंशन करा हुआ है बट method is completely missing. I don't know how they have put it, but एक second, let me see if the method should have been given here. मतलब simple एक line का method है. I don't know why they have missed it. Integration तो पढ़ने का भी मन नहीं करता, कई वेबसाइट ऐसी होती हैं. Don't feel like reading them. Let me just find it out. Okay, 3 मेथड है और कुछ नहीं है इसके अंदर. There are 3 ways you have to solve it. Okay, let me just put them across, then we will start doing the questions. ठीक है. एक सेकेंड में आ जाता है समझ में वो. Not that hard. The so you have this. Okay, got it. Yes, मिल गया. Okay. All right. So first thing is, let's see the first method. Okay, and let's see. So let me give you all the formats which you need to memorize. Or common sense driven भी है. So let's say you have the format of px by 2 लीनियर फैक्टर्स बिलो. जैसे अभी आया था लीनियर फैक्टर थे 2 नीचे, वो तो मैंने खुद फैक्टराइज कर दिया था. ओके, सो यू हैव 2 लीनियर फैक्टर्स हियर. मतलब लीनियर का मतलब होता है पावर 1 है. पावर ये वन. देखो, ये क्वेश्चन में जब स्प्लिट करा था ना, ये पावर 1 है. इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर्स. तो अगर मान लो ऊपर एक पी एक्स है और नीचे 2 लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं. लीनियर फैक्टर नंबर 1, लीनियर फैक्टर नंबर 2. Okay, the way you have to solve this is you will write it as a upon L1 plus b upon L2. ठीक है जी. ठीक है. ओके, L का मतलब होता है लीनियर. जहां भी L देखो वो लीनियर है. Okay, let's take another format. तो 3 आ जाते हैं मान लो, px upon L1 L2 L3. 3 factors. Okay, so a1 by L1
प्लस बी बाई एल टू प्लस सी बाई एल थ्री, तीनों को अलग अलग लिख दो, फिर ए बी सी की वैल्यू निकालो और इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, लेट्स से यू हैव पी ऑफ एक्स, बट इस बार क्या होता है, द फैक्टर्स आर रिपीटिंग। ओके, सो लेट्स से एल वन स्क्वायर एल टू, ये एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, unfortunately I'm not able to find it, but if you have repeating patterns, what do you do? Okay, so what you will do is a1 by l1, Yes, sir. ठीक है, प्लस l1 स्क्वायर अच्छा, प्लस c अपॉन l2, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर में आ रहा है l1, तो यू हैव टू राइट इट इन लीनियर एंड सेकेंड टाइम स्क्वायर ऑफ द सेम, दो बार लिखना पड़ता है, okay, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको बोलते हैं, लेट मी टेल यू द वर्ड विच दे यूज फॉर दिस, लेट मी जस्ट टेल यू द वर्ड सो दैट यू कैन मेमोराइज इट। इसको बोलते हैं द रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इफ अ लीनियर फैक्टर इज गेटिंग रिपीटेड, ओके, इसका नाम है द रिपीटेड लीनियर फैक्टर। दो बार आ गया ना, तो दो बार ही आ रहा है यहाँ पे, एक बार L1 में आ रहा है, एक बार स्क्वायर में आ रहा है। ओके, इफ यू फॉर एग्जांपल हैव दिस इन अ क्यूबिक फॉर्मेट, okay, let's say you are given px divided by let us say you are l1 l2 का let's say cube, so this will be a upon l1। अब क्योंकि क्यूबिक है तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, yes, sir. जितनी बार लिखा हुआ है उतने ही पावर्स में लिखना है। सो b बाय l2 प्लस सी बाय एल टू स्क्वायर प्लस डी बाय एल टू क्यूब, सेम, जिसकी पावर दिखे उसको उतनी बार लिखना है, 1 2 3। ठीक है, गॉट इट? yes, sir. तो आपको पहचानना पड़ेगा, अच्छा इसमें रिपीट हो रहा है, अच्छा नीचे आ रहा है भाई x माइनस वन होल स्क्वायर, अच्छा दो बार है, तो ठीक है, एक लिख लेते हैं इसका b अपॉन एक्स माइनस वन, दूसरा लिख लेते हैं c अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। कईयों में रिपीट नहीं होगा, नॉन, ये है नॉन रिपीटिंग वाले। ओके, दीज टू Okay, आर नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। understood. गॉट इट? Yes, sir. लेट्स से यू हैव अभी थोड़ा सा सो वी विल जस्ट डू सम पैटर्न फाइंडिंग फर्स्ट, कि हम क्वेश्चन देख के पहचान सकते हैं कि कौन से वाला है रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड ऑल दैट। और एक जो और था अभी हमने कर लिया ऑलरेडी, विच इज इफ यू हैव अ पी एक्स बट इन द डिनोमिनेटर व्हाट यू हैव इज अ लीनियर फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन एल एन क्यू। सो लाइक एल मीन्स, ये हमने करा था अभी क्वेश्चन, ओके, हाँ, करा था. okay, so उसमें quadratic था, so what we do is standard method is you will write it as ax plus b divided by the linear, sorry, quadratic, यही करा था ना, q वाला पार्ट जो Yes, था sir. नीचे, हाँ, ये देखो, ये quadratic वाला पार्ट नीचे लिखा था, ठीक है. राइट, और फिर बैलेंस पार्ट में, राइट, यू हैव टू राइट इट एज द ए एक्स प्लस बी, और अगर आपको तीसरा भी निकालना है तो यू कैन राइट इट एज सी बाय लीनियर। Okay, और सम पीपल राइट इट डिफरेंटली, व्हाट दे डू इज दे राइट ए को लीनियर के नीचे लिख देते हैं, ओके, विच इज बेटर आई थिंक। ए को जो है ऐसे मत लिखो, सो राइट ए विद लीनियर एंड द सेकेंड विद द क्वाड्रेटिक, सो द बी एक्स प्लस सी पार्ट जस्ट राइट क्वाड्रेटिक विद फैक्टर, तो नीचे यही बन जाएंगे एल और क्यू, हाँ, नीचे वही होता है, लेकिन हाँ यहाँ क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब है ये टूट नहीं रहा correct. लीनियर में। यू कई बार तो क्वाड्रेटिक टूट जाती है ना दो रूट्स में, ये टूट नहीं रहा, तो आप इसको अलग अलग लिख, ठीक है, ओके। लेट्स से नाउ यू हैव अ partial fraction which is of the form both quadratic. Oh, okay. Okay, so this is ax plus b upon q1 plus cx plus d upon q2.
Got it? Yes, sir. Okay. Now, even if you have a form which is repeating and quadratic, ठीक है? So इसमें भाई ये तो रिपीट हो रहा है तो इसको तो 2 बार लिखेंगे हम, और एक क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए, और वी विल फाइंड, aim will be to solve the right hand side and then compare it with the numerator जो भी दे रखा है, जो भी दिया है न्यूमरेटर में, कुछ भी दे सकते हैं, तो वो कंपेयर कर लो। और अगर राइट साइड पे एक्स क्यूब आ रहा है और लेफ्ट पे भी कोई एक्स क्यूब नजर आता है यहाँ पे, यहाँ तो एलसीएम ले लोगे, यस सर। जैसे अभी लिया था ऊपर। ये देखो व्हाट वी डिड, यहाँ पे वी वर सॉल्विंग दिस, राइट? तो यहाँ पे ऊपर देखो क्या है, 4x+5 है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे नॉन रिपीटेबल लीनियर फैक्टर बने, हाँ। तो उसकी फॉर्मेट लिख ली ये वाली, a/l+b/l। देखो ये वाला, 2 लीनियर फैक्टर बने, और ऊपर जो था वो था सम पॉलिनोमियल, कोई भी हो सकता है। यस फिर सर। क्या करा, राइट साइड में इसको तोड़ा, एलसीएम लिया, देखो ये पहले 2 लीनियर फंक्शंस में डिकम्पोज करा, L1 L2, फिर वैल्यू निकाली, a+b को कंपेयर करा 4, और 2 - a को करा 5, राइट? यस सर। तो ये जो a और b की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे वापस डाल दी थी हमने, और फिर इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि वी डिकम्पोज सक्सेसफुली। तो पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के अंदर योर होल सोल गोल, एंड व्हेन आई सेड न्यूमरेटर कैन बी एनीथिंग, न्यूमरेटर कुड हैव बीन दिस आल्सो ना, हाँ बिल्कुल। बट हमारा फोकस क्वेश्चन में हमेशा नीचे की तरफ है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इनटू L, so this is of the type this one, so one linear and the other is bx plus c divided by quadratic, and which is what I did. I wrote one as linear, quadratic, and the other as linear. Quadratic Okay. वाली के q के ऊपर ax plus b आता है, देखो q के ऊपर कौन सी फॉर्मेट आती है, और जो लीनियर होता है उसके ऊपर सिर्फ एक नंबर आता है ना? यस सर। तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, आपको तो लेफ्ट और राइट को कंपेयर करना है। भाई मेरे को यहाँ पे कुछ और दे देते हैं मान लो यहाँ पे, पर मेरे पास तो सिर्फ x और यही है ना, सिर्फ हाँ करेक्ट। नंबर, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ भाई, ये वाली चीज जो है ये दिस इज 4 एंड दिस इज 5, गॉट इट? यस सर। सो आई विल जस्ट, this is what we have covered rational functions के अंदर, okay? So the what you will be given is a rational function of the form px by qx. You will have to break it down into what? Partial fractions. After Understood. breaking down into partial fractions, you will do integration. So this middle step is what we are learning. Integration will be standard integrations. इसको ये डाल दो, इसको ये कर दो, बट पॉलिनोमियल फंक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल है ये। ठीक है। कंपैरिजन ए बी सी डी की वैल्यू ढूंढनी है, पहचानना है इनमें से कौन सी टाइप की वो है, इन सब में से कौन सा फॉर्मेट है। सो दिस इज 1 2 3 4 and this is 5, this is 6th and 7th, right? So there are 7 formats to it. You can create many, but अभी इतने बहुत हैं हमारे लिए, enough. ठीक है? Now let me just write down some questions and you just tell me based, you don't have to solve it right now, okay? I will write down, you will identify the format, okay? So let's say I put अगर क्वाड्रेटिक रिपीट हो रही है तो क्वाड्रेटिक में भी वही करना है, पहले एक क्यू, फिर क्यू स्क्वायर, फिर क्यू
अगर क्यूब में रिपीट हो रही तो क्यूब, जैसे एल में रिपीट हो रहा था ना. अंडरस्टूड. Yes, sir. Okay, so let's say I write a question. We'll start with simple. So if I write 1 upon x minus 1 into 1 upon x minus 2 dx, इन सब में से बताओ कौन सा फॉर्मेट है ये. इसको अगर डिकम्पोज करना हो इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हाउ विल यू डिकम्पोज इट, विच फॉर्मेट विल यू अप्लाई. सो यू विल से 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट. इन सब में से, इन सातों में से कौन सा चुनोगे. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिसाइड होता है ना. हाँ. विच वन डू यू थिंक इट इज. First one. फर्स्ट वन. यस. स्ट्रेट ठीक. फॉरवर्ड. लीनियर ही तो आ रहे हैं दो नीचे, और क्या आ क्या रहा है. हाँ. आंसर, टेक एलसीएम, फाइंड ए बी, पुट इट बैक, इंटीग्रेट, खत्म. Okay. Now let me ask you, how will you do this? Never care about numerator in this. ठीक है. Numerator is not your worry. Got it? Yes, sir. So let's say you have to do x square. Numerator में तो कुछ कर भी नहीं रहे, तोड़ तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रहे हैं. x minus 1 into x plus 2 and then x plus 4 is equal to, which one will you use now? Again the same. Out of the 7 you see, which one do you like? Okay, I can write Second. it. Agreed. 3 है ना, तो ऊपर इसकी तो चिंता ही नहीं करी ना. नहीं. सिर्फ ए बी सी निकाल लेंगे आंसर, फिर तोड़ के लिख देंगे इसको. मतलब यू कैन स्प्लिट द होल थिंग इनटू 3. यू कैन स्प्लिट दिस रैशनल फंक्शन इनटू 3 पार्शियल फ्रैक्शंस. ओके, Correct. गुड. आई होप यू आर लाइकिंग दिस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. Yes, sir. पहले मैंने जस्ट वांटेड टू गिव यू अ ब्रॉड ओवरव्यू कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है और टूटता कैसे है. बट लेट्स से now you get it कि what exactly are we doing. So let's say we have to okay, नहीं, मैं उसके राइट साइड पे लिख लेता हूँ फॉर्मूले के राइट. सो लेट्स से you are given a question which is 2x plus 3 divided by any number you can write, 5x square plus 6x plus maybe 2. Okay, ये दिया हुआ आपको और साथ में ये भी दे दिया आपको x plus 1. इंटीग्रेट. सो द मोमेंट यू सी, पहले तो आपकी घंटी ये बजेगी कि दिस इज अ पी क्यू बाय p by q फंक्शन, राइट. इट्स टू पॉलिनोमियल्स गेटिंग डिवाइडेड. सो इन सब में से कौन सा बढ़िया लग रहा है अब देखने में स्प्लिट करने के लिए. यू जस्ट आइडेंटिफाई, पहचानो. विच वन डू यू थिंक इज अ नाइस वन विच रिंग्स द बेल फॉर यू. So this is quadratic, right? Yes, sir. And this is a linear. So which one do you think makes sense? Fifth, right? Linear and हाँ. quadratic. Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ. I hope you're not finding it too hard. नहीं. Straight forward है, मतलब ठीक है. ये पूरी इंटीग्रेशन ही ऐसी है, मतलब ये मेथड है जी, ऐसा करना है. यू हैव टू डू लाइक दैट. ओके, सो लेट्स से okay, one point, okay, is, I don't know, have you heard of the terminology in junior classes for proper rational function? What is a proper rational function? Which is where p will play a slightly important role. So let me tell you. मैं पेज बदल रहा हूँ, ठीक है. I think this is end of life. So मैं the page number 2, ठीक है.
ठीक है। So there is nothing complicated, कुछ है नहीं. So this is a concept of proper function, rational function versus a function which is not fully divisible. So if you see a proper rational function kind of word, what they're trying to say is if you're given a rational function of the form px by qx, right? Then the if px is less than qx, which is the power of px, right? तो ऊपर हो सकता है ऐसे लिखो x plus 1 divided by x square plus 5x plus 2 multiply by x minus 3. So this is quadratic and this is linear, right? And you can obviously see the power of p is less. Only one ही तो है. हाँ, वही। तो इसमें ये जब मैं बोल रहा हूँ फंक्शन लेस नहीं है, पावर, ठीक है। right? So you if you divide them, then the degree of px, which is 1 only in this case example में, is less than the degree of qx. डिग्री ऑफ क्यू एक्स तो एक्स क्यूब आ जाएगी मल्टीप्लाई करने में. हाँ, तो ऐसे अगर फंक्शन हो तो उनको बोलते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन. प्रॉपर है ये. ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, मतलब वैसे छोटी क्लास में था 2/5. ये कम है ना, छोटा ऊपर वाला बेसिकली. नाउ लेट्स से व्हाट आर इम्प्रॉपर, राइट? सो इम्प्रॉपर की अगर मैं बात करूंगा या रैशनल की मैं बात करूंगा, ओके, सो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन की अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली ये नो ब्रेनर. सो हेयर द पी एक्स की जो डिग्री है, डिग्री, ओके, नॉट पी एक्स बट द पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज ग्रेटर देन द पावर ऑफ एक्स इन क्यू एक्स. तो कई बार ऐसे भी लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2. करो इंटीग्रेट. अच्छा। अब क्या हुआ, आपने देखा यार पी एक्स की तो पावर बड़ी है. सो व्हाट दे सजेस्ट इज, जैसे कि आपको ये दे दिया अब इन्होंने 5/3, तो अब मेथड ये हो जाएगा कि पहले इसको लिख लो 1 और 2/3 स्प्लिट कर लो पहले. ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन जो है वो चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें पावर सही नहीं है. तो पार इसकी पावर सही करते हैं पहले, ठीक है? और सही करने का बड़ा सिंपल मेथड है, डिवाइड ही करना है. जैसे यहाँ 3 से डिवाइड करा, 3 1s आर, और क्या करा, राइट? सो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 1x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, राइट? डिवाइड ही कर लेते हैं. सो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, गाइस आ रहे ना? Yeah, Yes, we're sir. taken care of. So let's say minus and minus. So क्या आ जाएगा? ये तो कट गया. This is gone. So you will be left with minus 3x square and minus x. Correct. And let's say I multiplied by minus 3. So minus 3x square minus 9x minus x. Right? प्लस ठीक है। कट गया, प्लस प्लस. सो ये 8x प्लस 6. अब डिवाइड नहीं होगा ये. बिल्कुल। अब तो इसको क्या डिवाइड करोगे? ये अब पावर इसकी देख लो क्या है, राइट? तो इसको मैं अब रीराइट कर रहा हूँ इस पूरे को. तो एक तो मेरा पूरा पूरा आ गया x माइनस 3 प्लस जो मेरा ये रिमाइंडर है, तो ये जैसे ये 1 लिखा है, पूरा डिवाइड कर लिया, एक तो ये आ गया फुल. इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x आंसर. तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन. अभी ये सही है, इसमें डिग्री ऑफ p जो है वो लेस देन q है. और इसको जब करना होगा तो मैं बोलूंगा ठीक है जी 8x प्लस 6, और नीचे तो मेरे को पता ही है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 था. तो ये मेरा इम्प्रॉपर है.
एल ऑफ द फॉर्म L1 L2। तो करेक्ट। इसको मैं सिर्फ लिख लूंगा A/L1 प्लस B/L2। L1 इज x+1, L2 इज x+2। फिर 8 से कंपेयर कर लूंगा और 6 से कंपेयर कर लूंगा। अच्छा। गॉट इट? यस सर। So one more. So whenever you're doing this question, obviously you will recognize the pattern which you have studied, 7-8 पैटर्न जो हमने पढ़े। और एक चीज सिर्फ एक्स्ट्रा नोट कर लेना कि यार ये पैटर्न लगते हैं प्रॉपर रैशनल फंक्शन पे, इम्प्रॉपर पे नहीं लगते। पहले ओके। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करके डिवाइड करके पावर छोटी कर देना। ठीक है। आई होप यू नो हाउ टू डिवाइड पावर, मतलब कैसे करते हैं, डिग्री हाँ कर वो लोगे, तो है ना? वो तो दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, पॉलिनोमियल डिवीजन है, वो तो छोटी क्लास में भी सिखा देते हैं। लेट्स से नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स अगेन। कईयों में इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू डोंट नीड टू मतलब सॉल्व टू मच इन दैम, मतलब उसमें कुछ जरूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, वैसे तो अच्छा है मेथड से करें, राइट? जैसे कि इफ आई टेल यू यू हैव टू स्प्लिट दिस x² माइनस a², सो यू विल, दिस इज p/q, राइट? हम्म। बट अगर इसको तोड़ना है तो वन वन वे इज यू से ओके, आई विल राइट दिस एज a/x माइनस a प्लस b/x प्लस a। then I will take LCM, I will write ax plus aa plus bx minus ba upon x square minus x square 1 upon x square minus x square, right? So this is x a plus b प्लस aa माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। अब कंपेयर कर लेते हैं, ऊपर तो सिर्फ वन ही है, यस तो सर। मतलब दिस दिस aa माइनस बी ए इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस b इज इक्वल टू 0। है नहीं ना x इस तरफ, वेयर इज करेक्ट। x? 1 प्लस 0 x है, right? So you can solve this and you can write a is equal to minus b. Put minus b here, you will get minus 2ba is equal to 1 and a will be minus, sorry, b will be equal to minus 1 by 2a। तो b की अच्छा। वैल्यू पता चल गई। ठीक है। तो वन वे इज दिस कि हम जी पूरा सॉल्व करेंगे और a तो हमारा फिर आ जाएगा 1 by 2a, हम्म। और बी भी आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे फिर 1 by 2a x माइनस a माइनस 1 by 2a x प्लस a, राइट? ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। बट इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ना बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की फॉर्मेट है। इसमें अच्छा। बेसिकली आपको ऊपर अगर आप देखोगे तो ये मतलब बिना सॉल्व करे हुए भी आई कुड हैव रिटन दिस फॉर्मेट। मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन स्ट्रेट अवे स्प्लिट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू दिस। याद हो जाए तो अच्छा है, ठीक है, समझ अदरवाइज गया। डू योर लीनियर, डोंट वरी कि भाई मुझे नहीं, मुझे ऐसे सीधा डायरेक्ट नहीं समझ, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, जस्ट स्प्लिटिंग इट इनटू ए देख के मालूम चल जाता है कि कैसे टूटता है, मतलब 2a एक्स्ट्रा लग गया ना, और क्या। समझ तो गया। अगर आपको फॉर्मेट दिख गया, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ भी 4 लिखा है, तो लिख देना 1/8 x ओके। माइनस 4 माइनस 1 आंसर, अंडरस्टूड। है ना? मतलब वो थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है कि आपको कितनी प्रैक्टिस हो गई और आपने कहा यार बार बार करने की जरूरत नहीं है, पता ही है इसका आंसर क्या होता है। इनफैक्ट ये रिजल्ट जो है यूज करे जाते हैं और इनको स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, उनमें ही गिना जाता है एक्चुअली। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमने करा भी है, हमने इसको उस फॉर्मेट में इंक्लूड करा था जहां पे हम x इक्वल टू वरी इसको डालते थे a सीकेंड थीटा, अच्छा। और हाँ हाँ हाँ। dx इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ a सीकेंड थीटा tan थीटा d थीटा। करे थे ना हमने एक्स स्क्वायर ए यस स्क्वायर सर, वाले, याद आ गया। है ना? ए स्क्वायर। तो एक ही चीज के धीरे धीरे यू विल फाइंड एज यू प्रोग्रेस इन इंटीग्रेशन दैट द सेम इंटीग्रल now is getting solved by substitution, sometimes by fraction, sometimes by something, but वो maturity आने में it takes time, but once you get it
ये आ गया आपका ए भी कट गया, तो आपका आ गया 1/a एंड दिस बिकम्स 1/cos θ हम्म, एंड दिस इज sin θ cos θ एंड दिस इज 1/a cosec θ। वही लॉग वाली फॉर्मेट आ गई, अच्छा। राइट? यस सर। बट ये कितना बढ़िया मेथड है ना, लॉग वाला। अब इसको डालो वापस एक्स को, x/a, सीकेंड निकला है ना, यस सर, करेक्ट। यू कैन फाइंड सीकेंड। तो देन फाइंड सीकेंड का मतलब क्या होता है? कॉस का उल्टा, मतलब हम्म, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। सो योर हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस इज x/a, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, यही हो गया मतलब। या मैं इसको उल्टा लिख लेता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू a/x। नहीं समझ करेक्ट। में आता वैसे तो, बेस इज a x, तो ये कितना बन जाएगा? x² माइनस a², हम्म, राइट? सो लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा मतलब साइन दिस अपॉन दिस, इसका उल्टा ही लिख देते हैं, सीकेंट कोसिकेंट x अपॉन √(x² माइनस a²। कॉट थीटा इज हाउ मच? परपेंडिकुलर बेस अपॉन तो, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन नाउ। ओके। आई एम नॉट टू श्योर ये मैंने फॉर्मूला जो लगाया है कोसिकेंट का, इज इट एक्यूरेट और नॉट? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। साइन थीटा का उल्टा आ रहा है, ये टैन थीटा, ये नीचे ही था ना डिनोमिनेटर में टैन थीटा, हाँ। उसको मैंने उल्टा साइन बाय कॉस कर दिया, इसको मैंने 1/cos कर दिया, तो ये दोनों कट गए साइन थीटा। सो वेट फॉर द इंटीग्रल ऑफ कोसिकेंट थीटा, होपफुली यही है शायद, लॉग ऑफ कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, या मे बी। ओके, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो मेथड है ये वाला, ये ज़्यादा एलिगेंट है। अच्छा। ओके, इसका जो स्टैंडर्ड आंसर आता है विच यू गेट एज अ, और बाय द वे जस्ट फॉरगॉट टू राइट 1/a भी है एक बाहर, ये a मिस हो गया ना ये, हाँ, यस सर, करेक्ट। so I will have to write 1/a also. Okay, so if you get in fact ये 2a आता है, I don't know why I have not got it, let me just see. अच्छा, a secant theta tan theta d theta a² tan square theta tan theta tan theta a secant theta divided by tan theta। अच्छा नहीं, log if you try to solve this 1/a log of x minus a, so this will become integral of x minus a into x plus a, करेक्ट। so this will become 1/a, ये कट जाएगा, so this will be हम्म, under root of x minus a upon x plus a is equal to 1/a log of x minus a upon x plus a raised to power half। करेक्ट। So this 2 will go with a, power है ना log की, हम्म, so this will become 1/2a करेक्ट। log of x minus a upon x plus a। तो if you get an integral of the form x² minus a², straight away use this। वो तो अच्छा। हम कर रहे हैं ना लीनियर यस लीनियर सर। हाँ, हाँ। L1 L2, but if you get such a simplified form, straight away write it। ओके। इससे भी आ गया सब्स्टिट्यूशन से, सब्स्टिट्यूशन ही तो यूज करी है मैंने। करेक्ट। x put x is equal to a secant, मैंने आई डेंट यूज L1 L2, हम्म, आई कुड हैव, मैं इसको तोड़ के हाँ, लिख कर सकता था सकते ना, थे। a हाँ। a अपॉन, बिल्कुल यही हम्म, अभी जो हमने करा था, कौन से वाला, वी डिड वन राइट, x माइनस टू, अच्छा नहीं x माइनस a ही कर रहे थे हम, ये वाला। ठीक है। इसका करते तो log ऑफ x माइनस a आता, हम्म, और इसका करते तो log ऑफ x प्लस a आता, तो log ऑफ x माइनस a माइनस log ऑफ x प्लस a वापिस यही आ जाता। तो लीनियर जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन से भी वही आंसर आया, सब्स्टिट्यूशन से भी वही आंसर आ गया। इफ आई इंटीग्रेट दिस अंडरस्टूड। नाउ, सेम ही आ जाएगा, हम्म, यही आ जाएगा। अंडरस्टूड। So this is a straight away an identity to be used। ठीक है।
Okay, similarly, if you have an identity, and you can, okay, I'm going to the next page now. So I think we're running out of memory in this. Okay, so let's say we have to do this. Okay, so this is integration of 1 upon x plus a into x plus b. Now the attractive part is you're bound to use this Hmm. linear. कि first I will decompose, बाद में देखते हैं, right? Yes, sir. So I'm going to decompose into two linear L1, L2, and then I will find A and B and put the values and then integrate. Log तो तब भी आएगा, but इसकी भी अगर आप इसको solve कर लोगे तो standard answer is 1 upon A plus B, okay, log of, okay, let's say this is log of x plus b upon x plus a. ठीक है, sorry, this is a minus b. Just rewriting this. A minus b log of x plus b upon log of x plus a. Understood. सेम ही है, मतलब वो सिर्फ थोड़ा सा फर्क आया है, वो 2a बन जाता है वहाँ पे, और दैट्स ऑल. तो x plus b upon x plus a, right? X plus b upon x plus a. So if I give you a question where it is integrate 1 upon x plus 2 into x plus 3, one way is this, पूरा करो. Hmm. The other is this, you write it as 1 upon 2 minus 3 log of, मॉडुलस लिख देना क्योंकि नेगेटिव नहीं होता ये, ठीक है. x plus 3 upon x plus 2. Answer. Understood. आइडेंटिटी बना ली ना इसकी. हाँ. शुरू कहाँ से करा था, और देखो कई इसी के अंदर दो आइडेंटिटी का यूज कर लिया. चलो यार, डोंट डू इट रिपीटेडली. क्यों करते हो? 1 अपॉन ऊपर 1 नहीं है पी में कुछ है ही नहीं. नहीं. पी है ही कुछ नहीं, 1 है, तो सिंपल कर दिया उसको. ये आंसर बार बार ये रिपीट होता रहेगा. ओके, लेट्स try some questions on this. Hopefully there are some in, okay, in NCERT. देखता हूँ अगर मिल जाए एग्जाम्पलर में, that will help. Okay, so let's say exemplar खोली तो थी मैंने. Let me just see if I can find exemplar. Okay, exemplar I did. CRT. Let me see if I have some better questions to do. NCERT class 12th integration. I hope I get it yet. PDF. Okay, integral. Antiderivative integration. Methods of integration: partial substitution,
log secant x cosecant x x plus t इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर हाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का दिया है सारे दिए हैं जितने मैंने पढ़ाए थे ओके एक सब्स्टिट्यूशन की मेथड है ओए होए एक्स ओके अंडर रूट ओके एक देयर आर अदर फॉर्मेट्स ओके यस है इन्होंने यूजिंग द फॉर्मूला 7.4.9 इसने 7.4.9 में समझा रखा है अच्छा इसने नाम ही नहीं दिया What an idiot ओके ओके हाँ सो टेबल 7.2 में सब आर्टिकुलेटेड है ये जो मैं बोल रहा हूँ अच्छा ओके लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू आल्सो सो दैट यू गेट अ ग्लिम्स कि मैंने कुछ कुछ नहीं करा दिस इज अवेलेबल इन एनसीईआरटी हम्म दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब एनसीईआरटी में इससे भी बेटर कुछ हैं जो हमने छोड़ रखे हैं अभी बट विल डू इट देखते हैं अभी पहुंचे नहीं वहाँ पे हम नाइस वंस which I found very useful इसमें यार हाउ डू यू सिलेक्ट यार मेरा होता ही नहीं है इसके अंदर यार तो फुल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सब हाँ वो भी ऑप्शन ही नहीं आ रही वो वाली कि आई कैन सिलेक्ट द विंडोज मोड और वो वियर्ड यार एक मतलब पहले स्विच ऑफ है वो पता नहीं रिकॉर्ड लिखा हुआ आ रहा है पता नहीं ये तो नहीं देखा मैंने व्हाट कैन बी वर्स देन दिस कोई तरीका होना चाहिए यार शॉर्टकट का कि भाई ये लो और वही शिफ्ट विंडोज एस विंडोज प्रिंट स्क्रीन हाँ वो करता हूँ चलो शिफ्ट शिफ्ट आपके में विंडोज की नहीं है ना शायद नहीं नहीं वो आ गया मेरे में मैक और उसका कंबाइंड बना रखा है सो बट आया था मेरे में आता शिफ्ट स्टार्ट एस तो ठीक है दिया हुआ है मतलब टेबल्स आर अवेलेबल ओके ऑन पेज नंबर 317 ठीक है बिल्कुल सेम टेबल है और फुली एक्सप्लेन्ड है लेट्स डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम इट अच्छा इसने और थोड़ा सा उसे he has given it more twist so I'm just taking a solved example from the exemplar so it is you write it down I'm reading the question okay 3 sin phi write it down कहीं भी लिख लो it is 3 sin phi okay दिख रहा है दिख नहीं रहा नो यहाँ पे हूँ मैं व्हाइट बोर्ड बंद हो गया उत्तरी okay let me go to page number 4 नहीं व्हाइट बोर्ड ही बंद हो गया okay मेरा चल रहा है should I close it and open it reopen मेरा तो मेरे को शो कर नहीं बंद हो गया okay see if you see it हाँ अब आ गया आ गया okay I'm going to some other page add page and let's see this okay
So just you're required to follow me. So I'm just copying the question, okay? ठीक है. So this is wow, wow, lucky man. I've lost the 3 sine phi. So the question is 3 sine phi, okay, minus 2 into cos phi. चलिए ट्रिग्नोमेट्री देख के you may get attracted to the prospect of using trigonometry, okay? Yes, sir. And नीचे है 5 माइनस, मैं ठीक कर दूंगा इसको, 5 माइनस cos square phi. This is a solved question in NCERT, okay? Not that. Okay. So I'm just finding it hard to copy it for some reason. 5 minus cos square phi minus 4 sine phi. Okay, minus 4 sine phi. Okay, sometimes, what do you think should be done in this? Okay, and it's under partial fraction, by the way, okay? Okay. So you can use multiple techniques. You can use, क्योंकि partial fraction में तो हमें पता है ना कि algebraic होना चाहिए, तो वो तो है नहीं है. नहीं. बट देखने में कुछ वैसा ही है, डिवाइडेड बाय समथिंग क्वाड्रेटिक. इसमें ट्रिक जो है, जो मतलब ब्लेटेंटली विजिबल है, वो मुझे दिख गई है. आई हैव सीन इट. यू ट्राई इट. Okay. मैं करूंगा तो योर ब्रेन विल नॉट वर्क. Hmm. यू राइट इट. नाउ लेट्स सी. साइन और कॉस वाले केसेस में कुछ करे थे हमने, ट्रिक लगाते हैं हम कि, और क्या वैसा है ये, या वी नो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन ना. नहीं नहीं, इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी यार, स्ट्रेट. अच्छा, एनसीईआरटी को. नॉर्मल एनसीईआरटी का कुछ नहीं है. एग्जाम्पलर के भी कोई खास क्वेश्चन है, ठीक ठीक है. अच्छा. काफ़ी कवर्ड है, मैंने कराए हैं जो. यू फाइंड इट एग्जाम्पलर वेरी सिंपल, स्ट्रेट. एक ही शॉर्ट में एग्जाम्पलर कैन बी फिनिश्ड. देखो, जो इजीएस्ट जो मुझे लग रहा है ना, is cos phi d phi is available to me. It's a derivative of sin phi. If I convert this whole thing, इसको भी मैं sin phi में बदल लूं, फिर मैं sin phi को t डाल देता हूं, अच्छा, उसका समझ गया. डेरिवेटिव तो अवेलेबल है मेरे पास. हाँ, ठीक तो है. वो 3t माइनस 2 आ जाएगा ऊपर, हम्म, और नीचे वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी t की. उसको मैं समझ पार्शियल गया. फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेता हूँ. यू अंडरस्टूड? हम्म, करके देखो. सो फर्स्ट कन्वर्ट cos स्क्वायर फाई इनटू sin स्क्वायर फाई, व्हिच मींस 1 माइनस sin स्क्वायर फाई. देखो, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन ट्रिग्नोमेट्री. हम्म, More practice you on trigonometry, more easy it is for you to solve these questions. Otherwise, that is where 10th standard, sorry, 11th standard trigonometry becomes very important.
ठीक है। ओह, नीचे स्क्वायर बन गया। यस सर। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ओके ओके, तो ये तो वो बन गया। ये क्या करा है? T-2, ये क्या करा है, ये वाला मेथड? व्हाट इज दिस? ये नहीं ये समझ मैंने में ऊपर आया। कर वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर का मतलब? ये 3T है ना? थ्री और बार टी। चला गया, अच्छा 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 अच्छा, थ्री बार लिख के T-2, थ्री अच्छा, बार कर राइट दिया। ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट, वो 2 dt नजर आ रहा है। हाँ अच्छा। और यू मीन दिस, राइट? यस सर, मैंने प्लस माइनस कर दिया, अच्छा, नॉट बैड। क्योंकि और कोई मेथड बन नहीं रहा। नहीं, क्यों, ये दिस इज P/Q ऑफ P/Q, राइट? अच्छा हाँ, डायरेक्ट वो भी लगा सकते लीनियर, मतलब ये भी ठीक है। आई लाइक हैं। दिस। अच्छा। ओके। ये भी बढ़िया है, इससे भी बढ़िया बन गया यार एक्चुअली। हम्म। क्योंकि इससे इसको दो हिस्सों में बांट लो ना। तुमने डायरेक्ट कर लिया, जो लीन उससे मेरे को करना था मैंने ये तुमने सोचा डिनोमिनेटर से करना था मैच मुझे। हाँ नहीं, ये ठीक है, ये ऐसे कर लो, T-2 अपॉन T-2 होल स्क्वायर, और दूसरा हिस्सा यही कर लो। करना था। हाँ, यही तो ये करना। बढ़िया है। क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है कि ये कट गए, ये तो कट गए तो हाँ। ये कट गए ना, यस सर। और ये भी कट गया। तो ये भी डिनोमिनेटर सो से वन कट गया। अपॉन टी टी माइनस टू माइनस टू। दिस इज दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स इज एनालिटिक गुड माइंड। ये ओके। एग्जीबिशन ऑफ अच्छी सोच है। मैं तो अभी बेसिकली मेथड ओरिएंटेड कर रहा हूँ ना, कि सोचो मत, मेथड फॉलो करो। हाँ। तो बट यू हैव गॉन वन स्टेप अहेड, आपने सिर्फ मेथड ही नहीं फॉलो करा, मेथड नहीं फॉलो करके सोचा, हम्म। विच इज बेटर एक्चुअली। बट सीखते हुए मेथड पे एम्फोसिस रखो, नथिंग ठीक है। रॉन्ग। मतलब यू कुड हैव सेड कि भैया ये मेरी जो फॉर्म है ये वाली, दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ A अपॉन T-2 एंड B अपॉन T-2, एल स्क्वायर आ गया ना। करेक्ट। एंड देन यू वुड हैव, आता तो यही जो व्हाट यू हैव डन, हाँ। बट यू हैव ट्राई टेकन नॉन मेथड अप्रोच, ऐसे कर लेते हैं, तो वो बाई चांस कट गया और ये आ गया, आता तो इससे भी यही। एंड नाउ यू हम्म। कैन इंटीग्रेट दिस, राइट? यू कैन इजीली इंटीग्रेट दिस। करेक्ट। So this will become log of T-2, and you know the value of T? T you had put sine phi, answer. Right, so we had to use two steps. One step is you will, so this was substitution practice. हम्म। कि यार मैं sin phi, this was trigonometry part, and then it was a substitution part कि derivative छुपा हुआ है अंदर, हाँ। और फिर partial fraction. करेक्ट। Right, so you will see as you mature into this that many different things start getting mixed, और एक stage के बाद you will become technique agnostic, which means you will not depend on a technique, you will say okay, I find this to be a better method, I will use this. कोई इसमें कुछ सिखाने के लिए structure है, but at the end of the day you will realize you can solve a lot of questions without the help of any structured method. You can solve them analytically, but the way you just did, ऐसे split कर देते हैं. Okay. अच्छा नहीं, sorry, this was exemplar. It was exemplar. Okay. So okay, one more question from. Okay, so this is, if you're preparing for JEE mains, exemplar should be welcome. ओके। If you're preparing for board, you just need to do exemplars MCQs. Right? So don't feel bothered about कि exemplar करनी पड़ती है. वो इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि यार वो ना उसका जो लेवल और थिंकिंग है, अच्छा थिंकिंग है, एनालिटिकल है बहुत. करेक्ट। Okay, so let's say you are given, sorry, इसको मैं, let me make it x squared plus 2. How will you solve this?
आइडेंटिफाई द पैटर्न. व्हाट पैटर्न? ऊपर तो चिंता भी नहीं करनी है, हाँ, इम्प्रॉपर तो है, ऊपर की L1 डिग्रीज. L2 वाला. हाँ, तो कैसे लिखोगे, लिखना जरा. तो याद नहीं है फॉर्मूला. यार, टेक्निक्स थी, राइट? सो दिस वाज क्वाड्रेटिक and this was linear, हम्म. right? So how would you write the quadrant? So linear part was a upon linear, and the balance was bx plus c upon quadratic. So this became x plus 2. ये वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं. हम्म. l is x plus 2, right? यस सर. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि ये x plus 2 है. Okay, and this is x square plus 1. Cross multiplying ax square plus a plus bx square plus 2bx plus cx plus 2c. हम्म. Let me collect all x squares. Let me collect all x and let me collect all फिर कंपेयर कर लेंगे ना न्यूमरेटर को. ठीक है. यस सर. एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ रहा है लेफ्ट पे, और इधर ये आ रहा है a प्लस बी. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1. यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a प्लस बी. अब यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, यहाँ पे 2b प्लस सी. यहाँ कांस्टेंट इज 1, यहाँ कांस्टेंट इज a प्लस 2c. थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल्स. ठीक है. से आई वांट टू गेट रिड ऑफ c. So c is equal to 1 minus a by 2. ठीक है, थर्ड से. ये फर्स्ट है, इसमें तो c है ही नहीं. सेकंड में c है, सेकंड में c की वैल्यू डाल रहा हूं मैं. सो 2b प्लस 1 माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू 1. 2b प्लस 1 बाय 2 माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू 1. मैं 1 बाय 2 उधर ले जाता हूँ, तो 2b माइनस a बाय 2 इज इक्वल टू हाफ, एंड 4b माइनस a इज इक्वल टू 1. a और b में आ गया ना, c हटा दिया मैंने. यस सर. c यहाँ से हटा के इधर डाल दिया, और a और b में ले आया, और एक a और b तो मेरे पास है ऑलरेडी. So 5b is equal to 2. So b is equal to 2 by 5. Right. So we can find a plus b is 1. So a is equal to 3 by 5. 3 by 5 plus 2 by 5 1 होता है ना. हाँ. c भी निकाल लेते हैं. c is equal to 1 minus 3 by 5 divided by 2 is equal to 2 by 5. So 2 by 5 divided by 2, 1 by 5. So I start putting the values back in the partial fraction.
यहाँ पे. So this has become a कितना निकाला है हमने? Let me just minimize it a bit. a आ रहा है मेरा, a आ रहा है मेरा, आ रहा था, कहाँ लिखा है a? a is 3 by 5, okay? So Hmm. this is 3 by 5 x plus 2 plus bx plus c. b was 2 by 5 plus c divided by x square plus 1. Okay. If you want to integrate them, this is log of x plus 2. चिंता नहीं Hmm. करनी ना इसकी तो. Yes, sir. Now let's look at 2 by 5 x plus 3 by 5 upon x square plus 1. I will write them separately now. 2 by 5 x upon x square plus 1 plus 3 by 5 dx x square plus 1. तो Hmm. ये x square का डेरिवेटिव ऊपर है 2x. अगर मैं पूरा x square plus 1 इक्वल टू t x square plus 1 इज इक्वल टू z डाल दूं तो 2x dx इज इक्वल टू dz. तो दिस विल बिकम dz डिवाइडेड बाय 5z log z. Uh, Log of x square plus 1. So 1 by 5 log z is equal to 1 by 5 log of x square plus 1 solved. If I look at this second part, this one, this is of hmm. the form a square plus x square. So this is of the form tan inverse x by a. मुझे पता ही है. So this becomes 3 by 5 tan inverse x by 1. Answer. Okay. और ये तो मैंने बता ही दिया है. This was easy, right? Hmm. 3 by 5 log of x plus 2. 1 upon x format है. ठीक है. But did you see, I immediately realized this is ln q. Hmm. And I wrote it as a upon l and bx plus c upon q. Then I took LCM, cross multiplied, collected all x square, collected all x, collected constant. Hmm. Compared with the px. px से comparison करा. Okay. नीचे तो सेम ही है ना अब दोनों. हाँ. कोई चिंता की बात ही नहीं है. ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, वापस यहाँ डाली. दिस वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड. इधर डाला, Correct. इन दोनों में इसको भी अलग अलग लिख लिया. बी एक्स प्लस सी को ये वाला पार्ट अलग कर दिया. Hmm. ये तो सीधा दिख गया मुझे कि एक्स स्क्वायर प्लस हाँ. 1 इज ऊपर दिया हुआ है एक्स डी एक्स. Hmm. और 3 by 5 एक्स स्क्वायर में से ये tan इनवर्स एक्स बना लिया. आंसर. So ठीक. this is the first step to identifying whether it is LL, L square, QL, what is it? वो पहचान लिया. You can do that. Those 7 formats we did. ठीक है. You need to practice trigonometry continuously. Hmm. You can see that you were not able to catch, and then derivative also needs to be done. ठीक है जी. ठीक है. चलो जी. See you tomorrow.